reusable bottles. Okay, some of the plastic crates are reused, plastic pallets are reused, metal containers sometimes are reused for chemicals and fertilizers, plastic carry bags, also what is called the plastic drums, plastic jerry cans, plastic IBC. IBC means intermediate bulk container. One container can carry 1000 liters of chemical. So that is called IBC, intermediate bulk container. These are all reusable. Then recyclable. Plastics are recyclable, metals are recyclable, glass are recyclable, paper also recyclable. So these are all the scientific packaging materials are mostly recyclable. So if the packaging material is not recyclable, then we have to use it for recovery of the energy. A lot of plastic waste materials are used for recovery of energy or recovery of chemicals, that is the pyrolysis. So these are the 4R hierarchy where we must follow in this packaging design point of view. And also the plastic waste management rule also, this is talking about this. So whenever we design the packaging from the environment point of view, we must follow this 4R hierarchy. These are the symbols to be mentioned on the plastic packaging as per the plastic waste management rule. So whenever the plastics are used in packaging, and the manufacturer or the converter who are manufacturing converting the plastics into the packages, that is called second category of industry, that is the packaging material converter. The first material is packaging material raw material manufacturer, like say Reliance. They are manufacturing the plastic granules, so they are packaging raw material manufacturers. So from them, people are buying this raw material and converting them into the packages, like bottle manufacturer, drum manufacturer, jerry can manufacturer. So they are called converter. So it is the job of the converter to create some symbol which will be embossed on the container. It is not on the label; it has to be on the body of the container, plastic packaging material. So to make it understand what is the material used for. So when the packaging materials are thrown in the environment, so there are our corporation or municipality have the people that is called solid waste management department. So they are collecting all these garbages and then they are doing the segregation of the materials as per the symbols. Depending upon the symbols, the material will be segregated and the similar material can be recycled. So this is from the recycle point of view. The symbol is mandatory as per the plastic waste management rule, also as per the CPCB, that is Central Pollution Control Board norms. Okay, these three arrows making a triangle indicates that it is a continuous cycle, that is material is recyclable, and the number inside the triangle indicates what is the material. So if it is made up of polyester, the number is 1. If it is made up of high density polyethylene, number is 2. 2 indicates material is HDP, high density polyethylene. Number 3 indicates for PVC, that is polyvinyl chloride. Number 4 is LDP, low density polyethylene. Number 5 is polypropylene. Number 6 is polystyrene, and number 7 to 19 are not yet been allocated. There are a lot of other plastics which is not yet been allocated, like nylon, ABS, polycarbonate. These are a lot of plastics are there which is not yet been allocated. So mostly these 6 plastics are commonly used in huge quantities as a commodity plastic. So these 6 has been identified. And laminates, another thing, will come as a number 7 or something else. Okay, number 7 basically this has not been allocated. Okay. You can see this also. So PET is normally used for soft drinks, bottle, furniture, carpet and milling. HDP is used for bottles, carry bags, milk pouches, recycling bins, agricultural pipe, all these things. PVC also used as a blood bag for our blood donation camps and all these things. The blood bag is basically made up of PVC. Pipe, window profile, fencing, flooring, shower curtains, lawn chairs, and non-food application also, and even the baby feeding bottles. LDP used all that. Tubing and mulching film, all this agriculture application also LDP is used. Polypropylene is used for making the plastic components like plastic chairs, plastic table, then food containers, like plastic tiffin boxes, dishware, all these things. Polystyrene, that is called PS. There are 2 types of PS. One is HIPS and another is EPS. EPS means expanded polystyrene. There is thermocol. HIPS called high impact polystyrene, which is used for making the cup for the ice cream, cup for the curd, and other thermoforming application, blister packaging application. That is our day-to-day life plastic utensils, toys, video cassettes, audio cassette cover, CD cover, DVD cover, and all these things. And then there is a clamshell containers for blister packaging or thermoforming. All these things are used for the polystyrene. So now these are the different plastics where this is basically the bulk packaging of water. And the smaller containers are the consumer pack, and this is a multi-layer bottle which are made of for tomato ketchup, Kishan, and other things. So these are all manufactured by different methods: extrusion, blow molding, or injection molding, and all these things. This is HDP containers which is used for our domestic application in different chemicals, and these are cosmetics bottles made up of HDP or polypropylene. Okay, even polystyrene also sometimes used. Then sand
SAN also used. It looks like a glass. Extrusion blow molding for the HDP materials. HDP is used in packaging. These are all extrusion blow molding of the HDP for different cosmetic application. And these are all PET bottles for juices and other things. PP bottle for plastic water bottle and juices or carbonated drinks. So these are all different applications which plastics are used. So now we go to the, these are all called FIBC, that is called industrial packaging, or they are called bulk packaging, flexible intermediate bulk containers. These are all made of PP or HDP fabric, and each bag can contain 1000 kgs of material. The heavy chemicals or even the polymer granules are exported in these type of bags, dyes and all these things. Now, basically the problem with the plastic, as we know that the user, when you are using this plastic, we are throwing here and there, which makes this nuisance and which made the plastic as a bad name, correct? Otherwise plastic is a very fantastic material. Recycling temperature or the energy requirement for recycling also less. Okay, the material is unbreakable. Material has lot of barrier, excellent barrier or excellent water repelling, that it is not reacting with the water. Like in metal, if we keep in water, it will get rusting or corroded. Plastic will not corrode in contact with the water. So there are a lot of benefits are there, but the problem is that whenever we are using the plastic, we are throwing it here and there. So littering of plastic waste is a major environmental issue, which makes land infertile, choke the drains, or ingestion by cattle causes death and give ugly look in the city or town. That is the main drawback of this plastic. So it is not by the plastic, it is basically by the user. अपन लोग जो हम लोग plastic use करते हैं, हमारा गलती है कि we are throwing it here and there. We are not disposing in the proper place. Because of that only this government, all these rules and regulations, that is plastic waste management rule 2016, which was published on 18th of March 2016. Why this regulation came? It is basically brought to keep the environment safe and keep the city clean, because of the human being who are not disposing the plastic in the right way. We should take a oath. हम लोग जो प्लास्टिक यूज करता है, हम लोग सब आदमी लोग शपथ लेना चाहिए कि हम लोग प्लास्टिक को कचरा नहीं करेंगे, हमारा वातावरण को गंदा नहीं करेंगे, इसको हम बराबर बिन में फेंकेंगे, अच्छा जगह में इसको डिस्पोज करेंगे. We should not throw here and there. Lack of proper system of plastic waste collection and segregation in the cities and towns. The municipality or corporation or the villages does not have the proper department, that is called solid waste management department, for proper system and collection and also segregation. Because first they has to collect it from the door to door or from our household, then they has to dump it somewhere, then do the segregation. Because if they can segregate, then only it can be used for recycling. Because all the different plastics you collect and then melt it, it cannot be recycled. Recycling के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो प्लास्टिक्स है अलग अलग उसको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा. मतलब एक नंबर लिखा हुआ पेट को अलग रखना पड़ेगा, 2 नंबर एचडीपी को अलग, 3 नंबर पीवीसी को अलग. So every plastics which basically the recycling symbol will be printed on the plastic. By seeing the number, it has to be segregated so that it can be then further recycled. And recycling करने से फिर ये झमेला खत्म हो जाएगा. Accumulation of non-recyclable plastic waste such as multi-layered laminated packaging or thermoset plastics. So these are the problem. Thermoset plastics क्या होगा? It cannot be recycled, है ना. नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक जो हमने बात कर रहा था कि फ्लेक्सिबल लैमिनेट्स, जो हम लोग बोलता है कि चाय का पैकेट है, कॉफी का पैकेट है, देन मिल्क का पाउचेस है, और हमारा जो डेली कंजम्पशनेबल मतलब डेली कंज्यूमेबल आइटम्स है, मतलब फूड ग्रेन्स है, राइस है, शुगर है, सॉल्ट है, ये जो प्लास्टिक पाउच में पैकेजिंग होता है, these are all called multi-layer laminated packaging, that is multi-layer MLP, multi-layer laminated plastics packaging. This is a problem because these are all not recyclable. Now government is asking all these user or the plastic converter to use a different structure which can be recycled, क्योंकि इसमें मल्टीलेयर में क्या करता है, अलग अलग प्लास्टिक का लेयर ही देता है. पॉलिएस्टर के साथ पॉलीथिलीन और पॉलिएस्टर के साथ मेटलाइज्ड पॉलिएस्टर, देन पॉलीथिलीन लगता है, एल्युमिनियम फॉइल लगा देता है. सो डिफरेंट मटेरियल्स आर बॉन्डेड टुगेदर. लेमिनेशन किया है. सो दिस लेमिनेशन करने के बाद उसको अगर हम रिसाइकल करना चाहते हैं, वी हैव टू डू द separation, delaminate करना पड़ेगा. Delaminate is not a easy job, it is very costly affair, so we have to delaminate each and every layer, then it can be recycled.
Open burning of plastic waste, especially thermoset plastics waste, is a major health and environmental issue and emits toxic gases. So burning of the plastic, sometimes what happens, these non-recyclable plastics or thermoset which are not recyclable, people are burning it in the open area or in the suburban areas, in the open area or in the suburban areas. गांव में दूर में जाके जला देता है. जलाने से क्या होगा, some plastics may emit toxic gases or carcinogenic gases which cause problem. Leaching impact on soil, underground water due to the improper dumping of the plastic waste contains metal and phthalates. So these are all some of the plastics are also we are dumping, landfilling होता है. तो इसमें जाके क्या होता है, जमीन को जो मिट्टी है उसको खराब कर देता है. Running of unregistered plastic manufacturing and recycling industries in residential areas. Lot of companies are there which are also running conversion of plastics in the residential area. They doesn't have a license also. The government want to allocate the license in the proper manner. What are the salient features of this plastic waste management rule 2016? So, plastic waste management rule 2016 shall apply to every waste generator. जो लोग भी waste generation करता है, all the consumer, हम लोग, all the consumer, all the the population of the country are waste generator. Local body, gram panchayat, manufacturer, importer, producer, and brand owner. So this rule shall be applicable to waste generator, those who are user. Then local body, gram panchayat, manufacturer of the plastic materials, importer, जो import करता है, producer and brand owners. Brand owners means the people who are manufacturing the packaging, what is called the products, like say Britannia Industries Limited, Tata Tea, Hindustan Unilever. They are what? They are brand owners. So they are owning the brand, and all these products which they are owning the brand are packed in the packaging material which is made up of plastic. So this brand owner जो भी है, उनका भी जिम्मेदारी है कि ये प्लास्टिक ठीक से यूज करना है. Carry bag made of virgin or recycled plastic shall not be less than 50 microns in thickness as per the 2016 rule. Okay, now in 2021, which was published on 12th of August, last month only, it was published. There is amendment of the plastic waste management rule 2016, and it is called now amended rule 2021. So there it has been mentioned that carry bag should not be 50, it should be 70 micron. Okay. So this we'll come to that point also. So the carry bag of virgin or recycled plastic shall not be less than 50 microns was the guideline as per the 2016 plastic waste management rule. The provision of thickness shall not be applicable to carry bag made of compostable plastic. Whenever we are using this, biodegradable plastic, that is plastics made from natural sources, like natural plastic, not the synthetic plastic. So the thickness, the limitation is not applicable because these are all compostable. They will get decomposed and mixed with the soil. That is starch-based plastics. That is biodegradable plastics. They are not under this PMW 2016 because they are all decomposable. So their thickness का कोई limitation नहीं है ना? Waste generators, including institutional generators, event organizers, shall not litter plastic waste. प्लास्टिक वेस्ट को लिटरिंग नहीं करना चाहिए. We shall segregate waste and hand over to the authorized agency and shall pay user fee as prescribed by ULB for waste management or spot or find the case of violation. So we shall segregate waste. हम लोग क्या करना चाहिए, प्लास्टिक को किधर भी नहीं फेंकना चाहिए. We should segregate, अलग अलग रखेंगे, and then hand over to the authorized agency. जो सरकार के तरफ से बोल रहा है, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी में और ग्राम पंचायत में कॉर्पोरेशन विल अरेंज द पीपल. वो क्या करेगा, डोर टू डोर आके आपका प्लास्टिक कलेक्ट करेगा. जैसे हमारा कलकत्ता में है, कलकत्ता म्युनिसिपैलिटी हैज द पीपल, वो लोग घर में आके बेल बजाएगा, आपको बेल बजा के हफ्ते में 2 दिन आता है, 2 days in a week they will come and they are given the bucket also. वो लोग बकेट भी देके गया कि वहां पे सब प्लास्टिक जमा करके रखिए आप. All these recyclable materials, plastics or other thing, glass होगा, metal होगा, all these materials which can be recycled, keep it in the bucket. Do not mix with the food waste. जो खाने का waste है, that is every day वो जो चिट्ठी बजा के लेके जाता है, कचरा वाला आता है, कचरा पेटी वो तो लेके चला जाता है. But this is a solid waste, है ना, not the wet, not the food waste. So there has to be segregated and accumulated, and then it has to be handed over to the authorized agency. है ना, उनको देना है. So this gazette was published in 2016, and it has been mentioned that within a period of 6 months of publication of this official gazette, producer, brand owner shall work
out modalities for waste collection system of collection back and plastic waste generation. वो क्या कहा था? There is a clause which has been called as this is extended producers responsibility, है ना? The brand owners and the plastic producer, उनका भी जिम्मेदारी है, जितना सामान वो लोग प्लास्टिक में पैक करके मार्केट में मार्केटिंग किया, उतना केजी प्लास्टिक वापस कलेक्शन करना है. सो दैट इज द कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी, ईपीआर. अदरवाइज बोला था कि प्लास्टिक यूज नहीं करना होगा, बंद करेगा. ठीक है. सो ऑल द ब्रांड ओनर्स एंड द प्लास्टिक प्रोड्यूसर, दे हैज टू वर्क क्लोजली एंड मेक द मॉडल डी फॉर रिकलेक्शन, कलेक्शन बैक, है ना? जो जितना केजी प्लास्टिक और जितना टन प्लास्टिक में पैकेजिंग करके अपना सामान मार्केट में छोड़ा है, उतना केजी प्लास्टिक आपको कलेक्शन करके दिखाना है. You can engage the what is called the NGOs. So a lot of all these company, Hindustan Lever, Dabur, you know, what is called that, all these company, Cadbury's, Coca-Cola, all these companies, they are engaging the NGOs for collection back of these packaging waste or plastic waste from this environment, है ना? Promote use of plastic waste for road construction and energy recovery or waste to oil to process the cement, liner, etc. तो सीमेंट इंडस्ट्री में प्लास्टिक यूज रिसाइकल करना है. देन प्लास्टिक से रोड बनाना है, एंड ऑल दिस, यू नो, इवन प्लास्टिक कैन बी, यू नो, व्हाट इज कॉल्ड द रिकवर्ड, पायरोलिसिस करके उसमें से ऑयल निकालना है. सो ऑल दिस प्रोसेस हैज टू बी प्रमोट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट करेगा. ओनली द रजिस्टर्ड शॉपकीपर्स और स्ट्रीट वेंडर्स विल बी एलिजिबल टू प्रोवाइड प्लास्टिक कैरी बैग्स. प्लास्टिक कैरी बैग अगर दुकान से देना है तो दे हैज टू हैव ए लाइसेंस एंड दे हैज टू हैव ए यूजर फी 48,000 per annum, that is 4,000 rupees per month. They has to pay the fee to the local you know, authority like corporation or municipality or gram panchayat में देना होगा, because they are generation of the plastic waste. वो क्योंकि सबको कैरी बैग देता है, कैरी बैग देता है तो हम लोग कैरी बैग में सामान लेके जाएगा, एंड देन कैरी बैग वी आर गोइंग टू थ्रो इट. सो उसको वातावरण से निकालने के लिए कॉर्पोरेशन इज यू नो डेपुटेड पीपल, एनजीओस को, पीपल को लगाया है ना, वो काम पे लगाया. दे आर कलेक्टिंग द बैक दिस प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम. सो उनके लिए दे आर चार्जिंग द फीस 4,000 पर मंथ फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट जनरेटर और द ब्रांड ओनर्स और द यू नो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर. तो उनको ये फीस देना, दे विल गिव अ लाइसेंस. उसके बाद दे कैन यूज द कैरी बैग. कोई भी शॉप में कैरी बैग देना नहीं अलाउड है. दे हैज टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी बाय पेइंग 48,000 रुपीस पर एनम, है ना? SPCB, that is called State Pollution Control Board, or the Pollution Control Council shall be of authority for enforcement of the provision of plastic waste rule related to the registration of all these. They will do that. Concerned secretary in charge of urban development, state university, all these things, they will be monitoring these plastic waste management rules. By waste generator, use of carry bags, plastic sheets like covers made of plastic sheets and multi-layered packaging. MLP मतलब multi-layered packaging, that is a laminate. Stakeholders and responsible authorities shall use Form 1 to 6 of the PWM Plastic Waste Rule 2016 for providing information to the authority for implementation of the rule. There are forms have been given in this annexure and they have to fill up and give to the local authority. The process of collection, segregation, utilization of plastic waste is explained. This municipality authority क्या करेगा, है ना? As per the rules 2016, है ना? Mixed and household or commercial use plastic सब collection करेगा. Collection by municipality staff or by authorized agency. सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट, वेस्ट को सेग्रीगेशन करना है ना, जो नंबर लिखा है उसमें 1 2 3 4 5 6, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर इट हैज टू बी सेग्रीगेटेड. मेटल होगा तो अलग करेगा, ग्लास होगा अलग करेगा, प्लास्टिक में होगा, प्लास्टिक में देयर आर डिफरेंट 7 कैटेगरीज आर देयर, 1 2 3 4 5 6. सो वी हैव टू सेग्रीगेट. सेग्रीगेशन बाय म्युनिसिपल स्टाफ और ऑथराइज्ड एजेंसी. देन जो इंसिनरेबल वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, इंसिनरेबल वेस्ट और नॉन इंसिनरेबल सॉलिड वेस्ट, है ना? जो इंसिनरेबल वेस्ट है उसमें क्या करना है, दे आर रिसाइकलिंग, रोड कंस्ट्रक्शन करेगा, प्लास्टिक वेस्ट, क्रूड और फ्यूल जो निकालेगा उसमें प्लाज्मा पायरोलिसिस और डिफरेंट प्रोसेस में उसको पायरोलिसिस करना है. और नॉन इंसिनरेबल वेस्ट में क्या करेगा, ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट है, उसमें कंपोस्टिंग है, एंड देयर आर other process they are going to do. Now if you see the total waste generated in our country in 2018-19 as per the data received from the annual report of the what is called that Central Pollution Control Board. Okay, per capita consumption in India was 11 kg per capita per year. 11 kg plastics was used by a human being in our country every year. हम एक साल में, है ना, 11 kg प्लास्टिक यूज करता है, और उसमें जनरेशन वेस्ट कितना जनरेशन करता है, 9.92 kg, है ना. आउट ऑफ दिस ऑल प्लास्टिक्स यू सी 94% is recyclable, that is thermoplastics, and only 6% of the plastics is non-recyclable, that is thermoset, है ना. Thermosets are not recyclable, thermoplastics are recyclable. So we have a problem with this 6% which is non-recyclable, है ना.
Respected Das sir, Yes, sir. sorry to interrupt you. Yeah. Now as it is 11 o'clock now, Correct. so within a moment, the inauguration of Jaipur Center is going to be started Correct, by sir. our honorable PM sir. Yeah, yeah. Humble request to have a break for some time. We will Yeah. resume the session immediately after the completion of the inauguration. No issue, sir. No issue. That will be Thank you fine. very much, sir. Thank you very much. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Yeah. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय स्पीकर लोकसभा, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अन्य माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सभी उपस्थित महानुभाव, राजस्थान में 4 नए चिकित्सा महाविद्यालयों के शिलान्यास एवं सीपेट इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जयपुर के उद्घाटन समारोह में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे स्वागत भाषण करें। माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर एवं पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लोकार्पण के अवसर पर आज वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आज के अवसर पर विशेष उपस्थित राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, भारत सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे साथी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, गजेंद्र शेखावत जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, राजस्थान के मेडिकल एंड हेल्थ विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, आदरणीय वसुंधरा राजीव जी, आदरणीय हमारे सांसद रामचरण दोहरा जी,
राज्यसभा के सांसद नीरज डांगी जी, यहाँ की विधायिका गंगा देवी जी, हमारे राज्य मंत्री खुबा जी, उपस्थित सभी भाई एवं बहन, आज मोदी जी की ओर से राजस्थान को 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। इसके अलावा राजस्थान के युवाओं को पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी में अभ्यास करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हो रहा है। जब राजस्थान की धरती पर राजस्थान के युवाओं को मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिले, अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगारी का अवसर के लिए उसको पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के माध्यम से ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार मिलने का एक नया अवसर ओपन हो रहा है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही थी। मेडिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है और पहले सालों में मेडिकल सेक्टर को हेल्थ के साथ नहीं जोड़ा गया और हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ा गया। डेवलपमेंट के साथ हेल्थ को जोड़ने की शुरुआत मोदी जी ने गुजरात से की। मुझे याद है मोदी जी को गुजरात में मुख्यमंत्री का ओथ देने के बाद आज तो 7 अक्टूबर हो रही है, तब 20 साल सरकार का हेड होने का 20 साल पूरा हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट हेड करने का 20 साल का एक लंबा अनुभव, और उसकी शुरुआत जब गुजरात से हुई थी, उस वक्त मोदी जी ने गुजरात में सबका साथ सबका विकास का एक मंत्र दिया। वो एक ऐसा मंत्र था जो सर्व समावेशी था। मोदी जी चाहते थे कि गरीब से गरीब लोगों का कल्याण होना चाहिए, गरीब के गरीब लोगों को लगना चाहिए कि सरकार हमारे लिए भी कुछ काम कर रही है और उसका फल उसको मिलना चाहिए। और इसलिए सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, यानी कि सब लोगों का साथ मिले, सब लोगों को समान अवसर मिले, सब लोगों तक सरकारी योजना का लाभ मिले, सब लोगों तक हेल्थ सुविधा मिले, सब लोगों तक सरकारी योजना पहुंचे, और इस मंत्र से उसको मिलना चाहिए। और इसलिए सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, यानी कि सब लोगों का साथ मिले, सब लोगों को समान अवसर मिले, सब लोगों तक सरकारी योजना का लाभ मिले, सब लोगों तक हेल्थ सुविधा मिले, सब लोगों तक सरकारी योजना पहुंचे। और इस मंत्र से गुजरात में हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई थी, मैंने देखा है। गुजरात के दूर सुदूर क्षेत्र, हमारे यहाँ ईस्टर्न पार्ट में उमरगाम से अंबाजी तक, जो राजस्थान से छटा हुआ क्षेत्र था, वहां हेल्थ सुविधा नहीं पहुंची थी। वहां हेल्थ सुविधा पहुंचाने के लिए एक क्षेत्र तक एम्बुलेंस कैसे पहुंचे? मां अमृतम योजना, आज आयुष्मान भारत योजना के तहत सारे देश को लाभ मिल रहा है। उसकी शुरुआत जब गुजरात में हुई वो मां अमृतम योजना से हुई। मां अमृतम योजना क्या थी? कोई गरीब व्यक्ति, उसके यहाँ पैसा नहीं होता है, आर्थिक सुविधा नहीं होती है, और उसको जब कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, बीमारी किसी को पूछ के तो नहीं आती है, गरीब को भी यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। और उस वक्त मोदी जी ने सोचा था कि गरीब लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, और गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मां अमृतम योजना के माध्यम से एक मां कार्ड दिया गया था। ये मां कार्ड से गरीब लोगों को बिना खर्च से राज्य सरकार की तिजोरी से उसका इलाज होता था। आज ये योजना आगे बढ़ के देश में
उसका इम्प्लीमेंटेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत हो रहा है। और ये भी आयुष्मान भारत योजना मोदी केयर योजना के नाम से भी देश में जानी जाती है। ये योजना कैसी है? हमारे यहाँ राजस्थान में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, देश के शेष भागों में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका अमलीकरण हो रहा है। आज तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलने का अवसर मिला। 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलना, यानी कि सरकार उसका खर्च सरकार की तिजोरी से दे दे, एक सामान्य और गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये योजना को विस्तार करके एनीवेयर एवरीवेयर, मोदी केयर एनीवेयर एवरीवेयर, यानी कि राजस्थान के कोई स्टूडेंट यहां से बेंगलोर में पढ़ता हो और उसको कोई वहां ट्रीटमेंट करानी है और वो आयुष्मान भारत का कार्ड है, वहां उसको इलाज मिल जाएगा। एक राज्य कोई मजदूर मजदूरी के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां रहते हैं, तो वहां भी उसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, उसका इलाज वहां हो जाता है। इस तरह से मोदी जी ने हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ के जब उस वक्त सबका साथ सबका विकास की कल्पना की थी, उसका एक भाग ये भी था जिसमें गरीब का पैसा बचे, गरीब के जेब में पैसा बचेगा तो उसका उपयोग अपने जीवन को अपर लाने में भी उपयोगी हो सकता है। वैसे ही उस वक्त मोदी जी ने हेल्थ कवरेज को गरीब लोगों के साथ कैसे जोड़ा, सबका विकास के साथ कैसे जोड़ा, उसका और उदाहरण है। मोदी जी ने गुजरात में चिरंजीवी योजना लागू की थी। ये चिरंजीवी योजना के तहत कोई मां बच्चा को जन्म देती है या तो जब कोई मां के यहाँ डिलीवरी होती है, कोई बहन के यहाँ डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी केवल सरकारी अस्पताल में ही गरीब लोग जाए और इलाज कराए, डिलीवरी कराए, ऐसा नहीं, लेकिन लोग भागीदारी से और सरकारी अस्पताल में ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी उस कोई बहन बेटी की डिलीवरी हो और वहां सरकार उसको आर्थिक सहयोग कर दे। इस तरह से हेल्थ सेक्टर को डेवलप किया, हेल्थ सेक्टर को विस्तारा, उसका लाभ धीरे धीरे 20 साल तक यही सातत्यता से गुजरात से लेके सारे देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन आज मैं देख रहा हूं। देश में आयुष्मान भारत योजना का अमलीकरण हुआ, गरीबों को इलाज मिलना शुरू हुआ, लेकिन हर गरीब को इलाज सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर चाहिए और डॉक्टर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए। देश में 127 मेडिकल कॉलेज आज सैंक्शन की गई है और बन रही है। राजस्थान में भी 23 मेडिकल कॉलेज को अनुमति दी गई है। उसमें से 4 मेडिकल कॉलेज सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा का शिलान्यास हो रहा है। 2600 से ज्यादा स्टूडेंट को वहां एडमिशन मिलेगा। हमारे यहाँ स्वयं का एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये राजस्थान में 2600 डॉक्टर हर साल बनेंगे और बाहर आएंगे। वो यहाँ राजस्थान के जनता की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। आज गुजरात में राजस्थान के बॉर्डर के इलाके के लोग स्वास्थ्य के लिए उसको गुजरात आना पड़ता है। भविष्य में राजस्थान में ही राजस्थान के नागरिकों को ट्रीटमेंट मिल पाएगी, सुविधा राजस्थान में हो जाएगी। ऐसा इतना ही नहीं, देश में पहले एक दिल्ली एम्स हुआ करती थी, आज 22 एम्स बन रही है। 22 एम्स के माध्यम से टर्सरी केयर, बेस्ट इलाज देश के नागरिकों को मिले, इसके लिए मोदी जी ने सुनिश्चितता की है। और थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, लास्ट वीक में मोदी जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयुष्मान डिजिटल प्लेटफॉर्म देश में लॉन्च किया। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से देश के नागरिक को अपने हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। देश के दूर सुदूर गांव में रहने वाले लोग, गरीब हो अमीर हो, उसको बेस्ट डॉक्टर की ट्रीटमेंट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगी।
अगले दिनों में हेल्थ सेक्टर में जो बदलाव हो रहा है, ये बदलाव देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की प्रगति के लिए, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ना बहुत बड़ी बात है। मोदी जी की बहुत बड़ी कल्पना विचार है। जब देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होते तो समाज स्वस्थ नहीं होते, और जब समाज स्वस्थ नहीं होते तो नेशन स्वस्थ नहीं हो सकता है। ये सोच आज से 20 साल पहले मोदी जी ने मां अमृतम योजना के माध्यम से गुजरात से शुरू की थी, और उसका फल आज देश के नागरिकों को मिलना शुरू हो गया है। और अगले दिनों में राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ ये इंस्टीट्यूट का लोकार्पण जब प्रधानमंत्री जी कर रहे तब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो होती है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट तो होती है, लेकिन ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं, उसका रोजगार कैसे सुनिश्चित किया जाए, और ये बच्चे पढ़ के उसको रोजगारी कैसे मिले, और एक क्षेत्र में रही इंडस्ट्रीज को उसका कैसे फायदा हो। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करने की बात आदरणीय मोदी जी ने कही थी। इंस्टीट्यूट टू इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करना, उसका प्रतिबिंब एक सिपेट इंस्टीट्यूट में हम देख रहे हैं। देश में 42 ऐसी इंस्टीट्यूट चल रही है। पहले जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, उसके समय के पहले की मैं बात बताऊं, उस सरकार के फंड पर निर्भर थी। मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया, मोदी जी ने इंस्टीट्यूट टू इंडस्ट्रीज कनेक्ट की बात कही, और ये सोच का ये नतीजा निकला। आज ये 42 इन द सिपेट सेंटर इंस्टीट्यूट, उसके इलाके में रहने वाली छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसका टेस्टिंग फैसिलिटी देते हैं, उसको और कोई प्रोजेक्ट देना है तो ये सिपेट इंस्टीट्यूट को देते हैं, और सिपेट इंस्टीट्यूट धीरे धीरे ट्रेनिंग भी देने लगी, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगे। छोटी छोटी एमएसएमई होती है तो उसके पास समय नहीं होता है, उसके पास इतना फाइनेंशियल सिचुएशंस में उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जो रिसर्च में समय लगाए, वो प्रोजेक्ट दे देते थे सिपेट में। और आज ये 42 सिपेट, 42 सिपेट आत्मनिर्भर है, सेल्फ सस्टेन है, उसको सरकार का कोई पैसा नहीं चाहिए, वो स्वयं अपना उपार्जन करते हैं, और एक साल में 1 लाख स्टूडेंट को ट्रेनिंग 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी तक एजुकेशन देते हैं, और उसमें से 95% लोगों को प्लेसमेंट मिल जाता है, रोजगारी मिल जाती है। एक देश के प्रधानमंत्री जी की सोच का यह नतीजा है। आज मुझे खुशी हो रही है, राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है, और युवाओं को रोजगारी देने वाले एक इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हो रहा है। इस अवसर पर मैं सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, और हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद महोदय। अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से कि वे अपना संबोधन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय कलराज मिश्र जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख भाई मंडविया जी, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी राज्य मंत्री, भगवंत स्खुबा जी राज्य मंत्री रसायन और डॉक्टर रघु शर्मा जी मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार, प्रसादी मीणा जी मंत्री उद्योग, श्रीमती वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री, श्री गुलाब चंद कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, और तमाम उपस्थित हमारे केंद्रीय व राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण और राजस्थान सरकार और भारत सरकार के तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण,
सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि उन्होंने 4 मेडिकल कॉलेज दौसा, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही के शिलान्यास करने के लिए और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ करने के लिए प्रोग्राम बनाने का निश्चय किया और आज हमारे बीच में है। मुझे बहुत खुशी है कि मेडिकल के अंदर जो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है पिछले 10 साल से, उसी का परिणाम है आज हम लोग 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करना संभव हुआ। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि राजस्थान वो राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर 33 जिले हैं और 30 मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। उसमें 15 तो चालू हो गए हैं तो 15 2023 तक चालू हो जाएंगे। उसमें से 4 का आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1947 के अंदर खाली पंडित नेहरू के वक्त में खाली एक SMS जयपुर का जो है सवाई मानसिंह अस्पताल वो मेडिकल कॉलेज खुला था। उसके बाद में लगातार जो ये फैसले हुए हैं, यूपीए गवर्नमेंट हो या एनडीए गवर्नमेंट हो, ये नई सोच पैदा हुई कि हमें मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाना चाहिए और उसमें हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जिस गति से ये मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर भी आपके मंसूर भाई बता रहे थे, वो बातें मैं आपको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। और अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी सीटें बढ़ाई गई है, MBBS की सीटें बढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे देश के अंदर भी मेडिकल सुविधाओं का जो विस्तार जिसकी सोच आज हम सबकी है, उसमें हम लोग कामयाब हो पाएंगे। एक इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 33 में से 30 जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, पर हमारे यहाँ 3 जिले बहुत बैकवर्ड है, जालोर, प्रतापगढ़, राजसमंद। अगर आप इस मुबारक मौके पर अगर आप सोच सके तो मैं चाहूँगा कि 3 मेडिकल कॉलेज के बारे में आप निर्णय करा सकें जो बच गए हैं, तो राजस्थान में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल पाएगा और एक इतिहास बन जाएगा। इतिहास बनाने में आपकी आज की मुबारक मौके पर मैं समझता हूँ कि जो भूमिका है उसमें इस प्रकार से हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। हमारे यहाँ जैसा भी मंत्री भाई बता रहे थे कि मेडिकल में हम लोगों ने काफी ध्यान दिया। शायद आपकी जानकारी होगा कि हम लोगों ने पिछली बार सरकार हमारी थी तब हमने फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट प्रारंभ किए थे और अब हमने कैंसर, किडनी व हृदय रोग के बारे में भी हमने दवाइयों का निःशुल्क व्यवस्था करी है। MRI, CT स्कैन भी हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए फ्री व्यवस्था कर रखी है। बरसों से हर सरकार सोचती थी कुछ करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, कुछ निर्णय करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। मुझे भी ये काम करने में बहुत मुश्किलें आई। संसद में पिछली सरकार के समय करना चाहता, नहीं कर पाता। इतने ग्रुप, इतने बड़े अड़ंगे डालते थे, बड़ी मुसीबतों से आखिरकार हुआ। हमें भी इसे ठीक करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। अब इन व्यवस्थाओं का दायित्व नेशनल मेडिकल कमीशन के पास। इसका बहुत बेहतर प्रभाव देश के हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्स और हेल्थ सर्विसेज पर दिखना शुरू हो गया है। साथियों, दशकों पुराने हेल्थ सिस्टम में आज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव जरूरी है।
मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डिलीवरी में जो गैप था उसको लगातार कम किया जा रहा है। बड़े अस्पताल चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, अनेक उनके संसाधनों का नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इस पर सरकार का बहुत जोर है। 3-4 दिन पहले शुरू हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अच्छे अस्पताल, टेस्टिंग लैब, फार्मेसी, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट सभी एक क्लिक पर होगा। इससे मरीजों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड संभाल कर रखने की भी एक सुविधा मिल जाएगी। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी स्किल मैन पावर का सीधा असर प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं पर होता है। इसे हमने इस कोरोना काल में और ज्यादा महसूस किया है। केंद्र सरकार के सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान की सफलता इसी का प्रतिबिंब है। आज भारत में कोरोना वैक्सीन की 88 करोड़ 88 करोड़ से अधिक डोज लग चुकी है। राजस्थान में भी 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लग चुकी है। हजारों सेंटर्स पर हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ लगातार वैक्सीनेशन करने में जुटे हैं। मेडिकल क्षेत्र में देश का ये सामर्थ्य हमें और बढ़ाना है। गांव और गरीब परिवारों से आने वाले युवाओं के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई एक और बाधा रही। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का भी मार्ग बना है। राजस्थान के गांव की गरीब परिवार की माताओं ने अपनी संतानों के लिए जो सपने देखे हैं वो अब और आसानी से पूरे होंगे। गरीब का बेटा भी, गरीब की बेटी भी, जिसको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला है, वो भी अब डॉक्टर बनकर के मानवता की सेवा करेगी। आवश्यक ये भी है कि मेडिकल शिक्षा से जुड़े अवसर समाज के हर हिस्से, हर वर्ग को समान रूप से मिले। मेडिकल शिक्षा में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के युवाओं को आरक्षण देने के पीछे भी यही भावना है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में उच्च स्तर का कौशल न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। सबसे तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों में से एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए स्किल मैन पावर आज की आवश्यकता है। राजस्थान का नया इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में हर साल सैकड़ों युवाओं को नई संभावनाओं से जोड़ेगा। पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग आजकल एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर जीवन के अनेक हिस्सों में बढ़ रहा है। इसलिए स्किल युवाओं के लिए आने वाले वर्षों में रोजगार के अनेक अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज जब हम
इस पेट्रोकेमिकल संस्थान का उद्घाटन कर रहे हैं तो मुझे 13-14 साल पहले के वो दिन भी याद आ रहे हैं जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में हमने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के आइडिया पर काम शुरू किया था। तब कुछ लोग इस आइडिया पर हंसते थे कि आखिर इस यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है, यह क्या कर पाएगी, इसमें पढ़ने के लिए छात्र छात्राएं कहां से आएंगे। लेकिन हमने इस आइडिया को ड्रॉप नहीं किया। राजधानी गांधीनगर में जमीन तलाशी गई और फिर पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी PDPU इसकी शुरुआत हुई। बहुत ही कम समय में PDPU ने दिखा दिया है कि उसका सामर्थ्य क्या है। पूरे देश के विद्यार्थियों में वहां पढ़ने की होड़ लग गई। अब इस यूनिवर्सिटी के विजन का और विस्तार हो चुका है। अब ये पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी PDEU के रूप में जानी जाती है। इसी तरह के संस्थान अब भारत के युवाओं को क्लीन एनर्जी के लिए, इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए आविष्कार का मार्ग दिखा रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज बढ़ा रहे हैं। साथियों, बाड़मेर में राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम जारी है। इस प्रोजेक्ट पर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी से पढ़कर निकलने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत से नए मौके बनाएगा। राजस्थान में जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, उसमें भी युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं। 2014 तक राजस्थान के सिर्फ एक शहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की मंजूरी थी। आज राजस्थान के 17 जिले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए अधिकृत किए जा चुके हैं। आने वाले वर्षों में राज्य के हर जिले में पाइप से गैस पहुंचाने का नेटवर्क होगा। भाइयों और बहनों, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी तो है ही, सीमावर्ती भी है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारी माताएं बहनें बहुत सी चुनौतियों का सामना करती रहती है। अनेक वर्षों तक मैं राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों में आता जाता रहा। मैंने देखा कि शौचालय, बिजली और गैस कनेक्शन के अभाव में माताओं बहनों को कितनी मुश्किलें आती थी। आज गरीब से गरीब के घर शौचालय, बिजली और गैस का कनेक्शन पहुंचने से जीवन बहुत आसान हुआ है। पीने का पानी तो राजस्थान में एक प्रकार से आए दिन माताओं बहनों के धैर्य की परीक्षा लेता है। आज जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के 21 लाख से अधिक परिवारों को पाइप से पानी पहुंचना शुरू हुआ है। हर घर जल अभियान राजस्थान की माताओं बहनों बेटियों के पैरों में जो सालों साल छाले पड़ते हैं, उन पर मरहम लगाने का एक छोटा पर ईमानदार प्रयास है। साथियों, राजस्थान का विकास भारत के विकास को भी गति देता है। जब राजस्थान के लोगों को गरीब की, मध्यम वर्ग की सहूलियत बढ़ती है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ती है, तो मुझे भी संतोष होता है। बीते 6-7 वर्षों में केंद्र की आवास योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में गरीबों के लिए 13 लाख से अधिक पक्के घर बनाए गए।
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान के 74 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में लगभग 11,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर हुए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के किसानों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम भी दिया गया। साथियों, बॉर्डर स्टेट होने के नाते कनेक्टिविटी और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को प्राथमिकता का लाभ भी राजस्थान को मिल रहा है। नेशनल हाईवे का निर्माण हो, नई रेलवे लाइनों का काम हो, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो, दर्जनों प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। देश के रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी बड़ा हिस्सा राजस्थान से और गुजरात से है। इसका काम भी नए रोजगार की अनेक संभावनाएं बना रहा है। भाइयों और बहनों, राजस्थान का सामर्थ्य पूरे देश को प्रेरणा देता है। हमें राजस्थान के सामर्थ्य को भी बढ़ाना है और देश को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। ये हम सबके प्रयास से ही संभव है। सबका प्रयास। ये आजादी के 75 वर्ष में हमने ये सबका मई प्रयास, इस मंत्र को लेकर के और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ना है। भारत की आजादी का यह अमृत काल राजस्थान के विकास का भी स्वर्णिम काल बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और अभी जब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था तो उन्होंने लंबी सूची कामों की बता दी। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका मुझ पर इतना भरोसा है। और लोकतंत्र में यही बहुत बड़ी ताकत है। उनकी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, मेरी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, लेकिन अशोक जी का मुझ पर जो भरोसा है उसी के कारण आज उन्होंने दिल खोल करके बहुत सी बातें रखी है। ये दोस्ती, ये विश्वास, ये भरोसा, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। मैं फिर एक बार राजस्थान के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के बाद आपकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाने वाली है, क्योंकि आगे इस वीडियो में रोमांच, डर और साहस से आपका सामना।
communication. से स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे
स्टार्ट होने वाला है। बैठे। इधर ही बुला ले, इधर ही बुला ले। कोई है ही नहीं इधर, बुला लेते इधर ही आ जाए, इधर बंद कर देते हैं, इधर बंद कर देते इधर ही बुला लेते। इधर कोई रहेगा नहीं, उधर ही लगा दो कैमरा, कैमरा उधर ही लगा दो। चलते देखो तो इसको इससे कनेक्ट करने दो। ऑन करेंगे। हेलो हाँ जी श्यामल जी, सर, कंटिन्यू करें? कर दे थोड़ा 10-15 मिनट, बिकॉज मेरा और एक मीटिंग था 12:30 बजे, तो उसको थोड़ा डिले करता हूँ, ठीक है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं, थोड़ा सा बोल देता हूँ बिकॉज अधूरा रह गया ना थोड़ा सा, बाकी मतलब सम 2021 का जो है वेस्ट मैनेजमेंट का रूल, वो थोड़ा बोलना था। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। Yeah, so I'm sharing the screen now. Okay. I think people also got disconnected. वो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं क्या धीरे-धीरे? नहीं, कुछ लोग ज्वाइन है, वो कुछ फिजिकली जो थे ना, वो है बच्चे हुए, और ऑनलाइन भी ज्वाइन है। एक्चुअली दूसरा हमारा दूसरा सेंटर भी है, वो लोग भी ज्वाइन किए हैं, जैसे गुवाहाटी, रांची। अच्छा, वो लोग भी है इसमें? हाँ, उसमें है। ओके। अभी स्क्रीन शेयर हुआ मेरा? नहीं सर, हुआ नहीं। हाँ सर, अब भी हो रहा है ना? उसको सर फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ये लास्ट स्लाइड व्हाट वी आर शोइंग, कि हम लोग ये स्लाइड दिखा रहा था कि टोटल कंजम्पशन पर कैपिटा, मतलब एक आदमी एक साल में कितना प्लास्टिक यूज करते हैं इंडिया में। इफ यू सी द फिगर, इट्स टू लेस। इंडिया में अभी भी बहुत कम है। 11 kg प्लास्टिक्स इज यूज्ड पर पर्सन पर एनम, whereas in European countries or American countries you will find it is more than 50 kg, 60 kgs. Okay, so we are in the safer side, कोई issue नहीं, but no, the population in our country is huge. So अगर 11 kg भी होता है, so it is say 150 crore the population. So उतना कितना होता है? It is a huge quantity. All of it, मतलब all together it is a big quantity. So out of all these plastics हम देखेंगे तो 94% is
recyclable, that is thermoplastics, and 6% is non-recyclable, that is thermosets और plastic laminates. जो laminates है MLP मतलब multi-layer laminates है ना, bakelite है, melamine है, these are all thermosets, considered as thermoset. इसमें MLP that is called our multi-layer laminates, that is a packaging of shampoo, sugar, tea जो भी है वो सब laminates होता है, ठीक है. तो इतना में लेके प्रॉब्लम है. तो मतलब कौन सा स्टेट में कितना वेस्ट हुआ ये भी हमें दिया हुआ है. नाउ दैट in 2019 there was a ban came in the plastic. I think first time in the history we put a ban in the plastics, है ना. पहले ban नहीं था. ये देखिए प्लास्टिक का, this is a picture I have taken from Cuttack, ओडिशा में. it was something in 2015 में मैं गया था कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए. तो I saw in the road side, रोड में ये देखिए गाय भी प्लास्टिक खा रहा है. बिकॉज क्या है ना, सिटी में ग्रासेस आर नॉट अवेलेबल. सारे तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो रहा है, जो जमीन वगैरह था लैंड को सब करके सब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो रहा है. तो ये घास कहाँ पैदा होगा. सो दिस रोड साइड में जो काउ चरता है तो दे आर ईटिंग द प्लास्टिक्स. बिग प्लास्टिक कैरी बैग खा रहा है. इसमें देखिए ये और एक प्लास्टिक खा रहा है, ठीक है ना. सो दीज आर गोइंग इन द स्टमक ऑफ द एनिमल्स एंड क्रिएटिंग प्रॉब्लम. दैट इज द रीजन. लेकिन गलती किसका है. गलती दिस इज फॉर द ह्यूमन. जो हम लोग ने प्लास्टिक इस्तेमाल किया करके रास्ते में फेंक दिया. अगर हम रास्ते में नहीं फेंकता है तो ये गाय को खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना. सो वी शुड बी मोर केयरफुल. बिकॉज ऑफ दिस द गवर्नमेंट हैज टू पुट दिस पेनल्टी क्लॉज. तो यहाँ पे क्या लिखा है, whosoever violates the provision of this act will be punishable with the fine. फाइन डाला है. फर्स्ट टाइम अगर यूज करेगा, सी ₹500 फॉर यूजिंग प्लास्टिक आइटम्स फॉर द फर्स्ट टाइम. एक बार यूज करेगा, पहले बार पकड़ लिया पुलिस तो ₹500, 500 रुपया, है ना. ₹500 बट व्हिच एवर एक्सटेंड अप टू ₹5,000 फॉर लिटरिंग प्लास्टिक आइटम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना. अगर लिटरिंग करेगा, हम रास्ते में अब फेंक रहा है, उस टाइम पकड़ लिया पुलिस तो क्या होगा, ₹5,000 फीस होगा. ₹10,000 फॉर यूजिंग और लिटरिंग प्लास्टिक्स फॉर द सेकंड टाइम. अगर दोबारा भी पकड़ में आ गया, जैसे होता है ना ड्राइविंग लाइसेंस, हम लोग अगर रूल तोड़ दिया, कैमरा में पकड़ लिया, तो फर्स्ट टाइम हम लोग रूल वायलेट करेगा तो क्या लाइसेंस में नोट होता है कि ही हैज नॉट ड्राइविंग प्रॉपर्ली, अब्रप्ट ड्राइविंग किया, तो एक बार रूल वायलेशन किया तो ₹5,000 होगा. दूसरा बार अगर करेगा तो देन इट इज ₹10,000. लेकिन इसका रिकॉर्ड कहाँ में मिलेगा. ये तो प्रॉब्लम यह है, रूल तो बना दिया, अगर हमें एक बार रूल तोड़ दिया, दूसरा बार भी तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा तो पिक्चर साथ में होना चाहिए ना. तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉट अवेलेबल. मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, है ना. तो वही आदमी अगर दोबारा करेगा तो उसको ₹10,000 फीस है. ₹25,000 एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच में एक्सटेंड अप टू 3 months फॉर द थर्ड टाइम. अगर तीसरी बार मैंने वही गलती किया, लिटरिंग किया, प्लास्टिक रास्ते में फेंक रहा है और मेरे को पकड़ लिया पुलिस ने, फोटो खींच लिया, देखा, अगर प्रूव हो गया कि दिस इज द थर्ड टाइम द सेम पर्सन इज डूइंग, तो क्या होगा, ₹25,000 फीस होगा, फाइन देना पड़ेगा एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच में एक्सटेंड अप टू 3 months, है ना. 3 महीने का जेल भी हो सकता है एंड ₹25,000 फीस होगा. ₹5 lakh but which may extend up to ₹50 lakh for producing plastic material in addition to sealing of the manufacturing unit once and imprisonment for the term which shall not be less than 5 years but which may extend up to 15 years. जो लोग गैर कानूनी बिना लाइसेंस का प्लास्टिक बना रहा है, गली गली में देखिएगा बहुत सारे कंपनी है, they are manufacturing carry bags in the locality or without any industrial area, without having any industrial license. अगर उनको पकड़ में आया so that 5 lakh rupees फी करेगा एंड एक्सटेंड अप टू ₹5 lakh, 50 lakh, 50 लाख तक फीस हो सकता है ना. एंड उसको फैक्ट्री भी सील कर देगा. ₹5 lakh but which may extend up to 25 lakh for using plastics as a packaging or wrapping material and imprisonment of a term which shall not be less than 5 years but may extend to up to 15 years, है ना. तो जो पैकेजिंग मटेरियल और रैपिंग मटेरियल यूज करेंगे, है ना, विदाउट एनी लाइसेंस, जो मैंने बताया था कि अगर प्लास्टिक यूज करना है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ₹48,000 पर एनम फीस देना है, मतलब ₹4,000 पर मंथ. अगर नहीं दिया देन आल्सो यू आर यूजिंग दैट ब्रांड ओनर्स, दे आर यूजिंग द पैकेजिंग मटेरियल और द शॉप दे आर यूजिंग द प्लास्टिक मटेरियल्स. तो उसके लिए क्या है, ₹5 lakh बट मे एक्सटेंड टू 25 lakh, 5 से 25 लाख तक फीस होगा, हाँ, एज ए प्लास्टिक और रैपिंग मटेरियल यूज करने के लिए. और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है 5 साल का, ठीक है, अप टू 15 years, है ना. दिस इज द 2019 का जो रूल है, प्लास्टिक बैन रूल, है ना. तो उसके बाद में क्या किया है, गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड टोटल 64 आइटम्स. आउट ऑफ 64 दे हैव मेड 12 आइटम्स व्हिच इज कॉल्ड एज ए सिंगल यूज प्लास्टिक, एसयूपी को बैन कर दिया, है ना. Disposable plastic used for plastic packaging and included items which only once before using disposed or एक ही बार यूज करते हैं हम लोग. जैसे छोटा छोटा पानी का बोतल है ना,
200 ml का पानी बोतल जो एयरक्राफ्ट में देता है, अब एयर इंडिया में फ्लाई करेगा, इंडिगो में जाएगा तो पानी का छोटा बोतल देता है ना। इंडिगो आजकल तो बोतल बंद कर दिया, दे आर गिविंग वाटर इन द स्मॉल डिस्पोजेबल, आपको टम्बलर में देगा, छोटा सा वो प्लास्टिक के ग्लास में पानी भर के देता है। और पेपर का भी यूज करता है, पेपर का भी ऑल्सो नॉट पेपर, पेपर कैन नॉट होल्ड लिक्विड, पेपर को क्या करता है, दे आर कोटिंग विद पॉलीथीन, प्लास्टिक कोटिंग करके, अदरवाइज पेपर में तो पानी नहीं पकड़ेगा, यू कैन नॉट स्टोर वाटर ऑन पेपर, सो उसको प्लास्टिक का कोटिंग किया है, सो दैट people are using as a disposable, but that is also single use plastic only, है ना, single use में वो आएगा। So these are the materials which are used only once। प्लास्टिक का स्पून, प्लास्टिक का स्ट्रॉ, प्लास्टिक का जो ईयरबड है ना, कान खुजलाने के लिए जो ईयरबड यूज करता है, these are all single use प्लास्टिक, एक बार यूज करके फेंक देता है। So these are have been identified and इसको बैन कर दिया। नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिमेन द डंप, ये सब उसका है ना। तो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर यूज्ड वंस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग थ्रोन अवे, है ना, फेंकने से पहले थोड़ा टाइम यूज करता है। द इम्पैक्ट्स ऑन दिस प्लास्टिक वेस्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड आवर हेल्थ आर ग्लोबल एंड कैन बी ड्रास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक में जो भी हम लोग आइडेंटिफाई किया ग्लोबली, देयर 10 आइटम आइडेंटिफाई किया, हमारा इंडिया में हम लोग 12 चीज आइडेंटिफाई किया। उसमें क्या क्या है, कॉटन बड्स एंड स्टिक्स, कटलरी, प्लेट्स, स्ट्रॉज एंड स्टेयर्स, चाय को स्टेयर करने के लिए देता है ना, छोटा सा प्लास्टिक का आता है। देन स्ट्रॉ, प्लास्टिक का खाने का जो कटलरी है, प्लेट्स वगैरह है। बैलून्स एंड स्टिक्स ऑफ द बैलून, बैलून का जो स्टिक है। फूड कंटेनर्स, खाने वाला जो खाने का डब्बा फास्ट फूड सेंटर में देता है ना, प्लास्टिक का डब्बा, पॉलीप्रोपिलीन का डब्बा, पीपी डब्बा। कप्स फॉर बिवरेजेस, बिवरेज कप चाय के लिए। बिवरेज कंटेनर्स, सिगरेट बट्स, प्लास्टिक बैग्स, पैकेट्स एंड रैपर्स, wet wipes and sanitary items, है ना, these are all identified as single use plastics and these are not to be used। ये जो 2022 के बाद में बोलता है कि ये बैन करना है गवर्नमेंट है। प्लास्टिक आर्टिकल व्हिच आर थ्रोन आफ्टर, ये सब आइटम यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा है, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक फूड कंटेनर, प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक टम्बलर, स्पून्स, कटलरी, जो मैं आइटम बताया है 10 आइटम, these are all the 10 items which have been identified as single use plastic and has been put a ban, है ना। जनवरी 2020 के बाद में ये यूज नहीं करना है ना। Honorable Prime Minister of India announced and took a pledge in the 5th June 2018 में, क्या प्रधानमंत्री जी, हमारा प्रधानमंत्री शपथ लिया था कि हम 2022 के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज नहीं करेंगे, है ना। Then this Ministry of Forest, Environment and Climate Change, they have also made a guideline, ये जो गैजेट नोटिफिकेशन बनाया है ना, सर्कुलेटेड टू ऑल कंसर्न मिनिस्ट्रीज इन द जनवरी 2019 में बनाया है, एंड देन दे हैव पुट ए बैन ऑन द प्लास्टिक्स, है ना, प्लास्टिक में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन लगाया है। एंड इंक्लूजन ऑफ द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी, मैंने जो बताया है, दोज हु आर यूजिंग दिस प्लास्टिक, उनका जिम्मेदारी है दिस प्लास्टिक को मार्केट से उठाने का, उठा के फिर इसको रिसाइकलिंग करना है। एक्शन टू बी टेकन क्या है, रिसाइक्लेबिलिटी, इसको रिसाइकिल करना है एंड मार्केट से उठाना है। मतलब क्या है, those the brand owners who are using this plastic as a packaging material, जैसे हिंदुस्तान लीवर हो गया, डाबर हो गया, कोलगेट पामोलिव हो गया, बड़ा बड़ा कंपनीज है, those who are using this packaging plastic material and the multi-layer plastics which are not, you know, what is called recyclable, और कुछ भी प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक का आपका वो फ्लोर क्लीनर है, फिनाइल है, प्लास्टिक का बोटल्स है, so these are recyclable, लेकिन उसको तो रिसाइकिल करना पड़ेगा। उसके लिए they has to follow this extended producers responsibility, मतलब they has to adopt some system कि ये हमारा घर से उठाना है और हमारा जो मतलब सोसाइटी से उसको कलेक्ट करना है। अगर उसने कंपनी ने साल में 1 टन प्लास्टिक बोतल में फिनाइल डाल के बेच दिया है, सो दे हैज टू अगेन कलेक्ट इट बैक 1 टन ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स फ्रॉम द सोसाइटी एंड देन यूज इट फॉर रिसाइकलिंग, दैट इज कॉल्ड ईपीआर। ये ईपीआर करना है ना। तो ये जो आइटम्स है, ये देखिए, कंप्लीट बैन ऑफ कैरी बैग्स 10 स्टेट में, 11 स्टेट में कर दिया, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये सब स्टेट में बता दिया। कंप्लीट बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स 11 स्टेट, असम, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सब में। पार्शियल बैन 5, गुजरात, केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, गोवा, येट टू बी बैंड, है ना, अभी तक बैन नहीं लगाया, ये कुछ स्टेट में बैन नहीं लगाया था, लेकिन दिस नाउ हैव कम, है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक तो मैंने बता दिया है। अभी ये जो मैंने बताया, इंडिया में 12 आइटम्स, वो पहले साइड में था 10 आइटम, दैट इज ए ग्लोबली ओवर द across the world। ये इंडिया में क्या है, 12 items have been made as a single use, है ना। Thin carry bags less than 50 micron, non-woven carry bags, small wrapping or packing film, straw, stirrer, cutlery, then cutlery, laminated bowls and plates, cutlery, small plastic cups, containers less than 150 ml or 500 gram, plastic sticks or earbuds, balloons, flags and candies। रोड साइड में जो बैनर लगाता है ना, बैनर, that is a PVC flex लगाते हैं हम लोग, that is also banned less than 100 micron।
है ना, cigarette butts, expanded polystyrene, that is thermocol, EPS, है ना, for decoration and cushioning, small plastic bottles for beverages less than 200 ml, 200 ml के नीचे जो बोतल है that is single use, उसको बैन कर दिया. Roadside banners less than 100 micron is banned. So these are the 12 items which have been identified as SUP, single use plastic, and put a ban in the plastic that is waste management rule 2019 का जो रूल है उसको बैन कर दिया. Now what are the alternates, है ना, alternates inputs क्या क्या चाहिए, इंडस्ट्री से input मांगा है, what are the alternatives which can be adopted for this. Present consumption and production, कितना अभी कंजम्पशन होता है, उनकी प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना है, difficulty anticipated in banning these items, इसको अगर बैन कर दिया तो what are the difficulties may come, है ना, adequacy of regularity framework and improvement required, cost का डिफरेंस कितना होगा, जैसे प्लास्टिक का पानी का बोतल बैन कर दिया तो पानी किस में पैक करेंगे, दूसरा कोई मटेरियल होगा, जैसे it can be packed in aluminum bottles or it can be packed in metal containers, so what is the economics, उसका कॉस्ट कितना होगा, that has to be identified. Uniformity in application across the country, engagement of the stakeholders को engage करना पड़ेगा. यहाँ पे वही पिक्चर है, this is All India Plastic Association, they have made a banner, उसको बैनर में they have made a pictorial banner जहाँ पे लिखा है banned items, ये जो सब आइटम बैन है, बैन में थर्मोकोल, ये जो फूड कंटेनर्स है, स्ट्रॉज है, स्टेरर है, देन कैरी बैग है, कटलरी है, स्पून्स है, फोर्क है एंड डेकोरेटिव आइटम्स है, ये सब आइटम वगैरह, प्लास्टिक का गर्लैंड वगैरह है ना, फूल का माला जो बनता है प्लास्टिक में, ये सब बैन कर दिया है ना. एंड नॉट बैन आइटम, अनबैन आइटम में क्या क्या है, ये सब 200 ml के ऊपर का पेट बोतल है, देन ये जो थर्मोकोल का जो शीट्स है व्हिच इज यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ टेलीविजन सेट्स एंड फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स, वो सब चलेगा. और मिठाई का जो डब्बा है जो सिंगल मतलब मोनो प्लास्टिक है, नॉट इज कंपोजिट प्लास्टिक, दूध का थैली वगैरह है 50 माइक्रोन के ऊपर में जो यूज होता है, दीज आर नॉन बैंड आइटम, ठीक है ना. सो दीज आर द पिक्टोरियल व्यू ऑफ द प्लास्टिक व्हिच इज क्रिएटेड बाय ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, है ना. ये तो मैंने पहले बता दिया, सिंबल्स जो है दीज आर ऑल सिंबल्स टू बी यूज्ड इन द प्लास्टिक, क्योंकि ये देख के म्युनिसिपैलिटी में जो कॉर्पोरेशन में जो डिपार्टमेंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दे विल सेग्रीगेट दिस प्लास्टिक्स. ये जो गैजेट आया था मैंने बताया था 18 मार्च 2016 में, है ना, जो हमने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें गैजेट के मुताबिक क्या क्या करना है, ब्रांड ओनर्स का क्या रिस्पांसिबिलिटी है, प्लास्टिक जो मैंने अभी बताया मल्टीलेयर पैकेजिंग, मल्टीलेयर प्लास्टिक्स क्या होता है, मोनोलेयर एंड ऑल दिस थिंग्स, दीज आर ऑल द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द गैजेट. एंड देन the responsibility of the local body, collection करना है, segregation करना है, recycle करना है, all these things I have showed you. Responsibility of the waste generator क्या है, those who are generating, उसमें ग्राम पंचायत का क्या होगा, to ensure segregation they has to segregate. First क्या होगा, door to door collection of the plastics is required, पूरा collection करना पड़ेगा, then segregation करना पड़ेगा, then recycling करना पड़ेगा, है ना. and then अगर recycling नहीं होगा तो उसको processing करके waste generation, recovery of oils and other thing can be done. Responsibility of waste generator क्या क्या, इसका क्या जिम्मेदारी है, this is already covered. Responsibility of producer, importers, brand owners, है ना, brand owner का क्या क्या जिम्मेदारी होगा, हाँ, this has already I told you that they need to establish system for collection back of the plastic waste generated due to their products. This plan of collection ought to be submitted to the State Pollution Control Board for applying the consent or establish operate for renewal. The brand owners whose consent has been renewed before the notification of these rules shall submit such plan within 1 year from the date of notification of these rules and implement with 2 years thereafter. Manufacture and use of non-recyclable multi-layer plastic, if any, should be phased out in 2 years time. ये जो 2016 में आया था, इसको बोला था कि नॉन रिसाइक्लेबल मल्टीलेयर प्लास्टिक को 2 साल में बैन करना है, लेकिन दिस अगर बैन करेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग. जो फीडबैक लिया था इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री एसोसिएशन फीडबैक लिया था कि देन हाउ टू पैकेज द बिस्किट, स्नैक्स, नमकीन, सॉल्ट, शुगर, फूड ग्रेन्स, ये कैसे पैकेजिंग करेंगे, दूसरा कुछ पैकेजिंग करेंगे तो दैट विल बी मोर कॉस्टली, सो दैट विल नॉट बी वायबल एंड कस्टमर्स को प्रॉब्लम होगा. अब देखिए ये जो शैम्पू का छोटा छोटा सैसे पैकेट आता है, बिकॉज ऑफ दिस शैम्पू का बिक्री कितना बढ़ गया. पहले जो भी आज से 30 साल 40 साल पहले शैम्पू सैसेट में नहीं मिलता था, शैम्पू का बिक्री कितना कम था. भारत में कितना आदमी शैम्पू यूज करता था, ज्यादातर लोग साबुन से साबुन नहाता था, साबुन में बाल साफ करता था, बिकॉज शैम्पू वाज नॉट अफोर्डेबल. शैम्पू खरीदने के लिए एक बॉटल खरीदना पड़ेगा, बॉटल मोस्ट कॉस्टली था, है ना. एक प्लास्टिक का या तो कांच का बोतल में शैम्पू था, उस पूरा बोतल का दाम होगा 50 रुपया 60 रुपया, तो इट इज नॉट अफोर्डेबल टू द ह्यूमन बीइंग्स. अभी भी देखिए आप कॉफी पाउडर, कॉफी इज सपोज टू बी द रिच पीपल ड्रिंक. कॉफी जो क्या होता है, रिच पीपल ड्रिंक हम सोचता है, क्योंकि कॉफी का क्या है, कॉफी खरीदने के लिए